Hello students, welcome to Edigraft Academy. In the last class we studied about polygenic inheritance. In today's class we'll study about pleiotropy. In pleiotropy, single gene affects several phenotypic traits. Means one gene will have one gene is responsible for several phenotypic traits. Means one gene will have many effects. ठीक है, one gene will have many effects. Whereas in polygenic inheritance, what we studied in our last class, polygenic inheritance, we studied that many genes affect one character. Many genes are responsible for only one character. Example, skin color, which was determined by three genes: gene A, gene B, gene C. Means three genes, gene A, gene B, gene C. Three genes affect one character, that was skin color. In today's class, now we'll study about pleiotropy. What is pleiotropy? Single gene has multiple effects. Single gene has several effects. ठीक है, समझ आ रहा है ना ये चीज? डिफरेंट समझो. पोलीजेनिक मीन्स मैनी जीन अफेक्ट्स वन ट्रेट. इन प्लियोट्रोपी सिंगल जीन हैज अफेक्ट सेवरल ट्रेट्स. ठीक है, सच अ जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन. Such a gene is called pleiotropic gene and the phenomenon is called pleiotropy. This phenomenon is called pleiotropy. Examples: phenylketonuria, sickle cell anemia, yellow fur in mice and starch synthesis in pea plant. This is very important. Single gene affects several phenotypic traits, that is pleiotropy. Such a gene is called pleiotropic gene and this phenomenon is called pleiotropy. What are the examples? Phenylketonuria, sickle cell anemia, yellow fur in mice and starch synthesis in pea plant. ठीक है, चलो. Now let's study what is phenylketonuria. This phenylketonuria is an autosomal recessive disorder. Remember this word, it is an autosomal recessive disorder. Autosomal means there are 46 chromosomes, that is 23 pairs of chromosome. Of these 23 pairs, 22 pairs are autosomes and the disease which affect this with this 22 pairs, that is autosomes, is autosomal. Recessive means it is recessive character. ठीक है, autosomal recessive disorder. phenylketonuria is autosomal recessive disorders. इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझना होगा, है ना? autosomal, autosomes and recessive. ठीक है, चलो. phenylketonuria is an inborn disorder due to lack of an enzyme phenylalanine hydroxylase. Very important. Why this phenylketonuria happens? Because of this enzyme phenylalanine hydroxylase. This enzyme is absent. This phenylalanine hydroxylase is absent. This phenylalanine hydroxylase is absent, which is necessary to convert amino acid phenylalanine into tyrosine. Now see here, this is phenylalanine. This phenylalanine is converted into tyrosine. This phenylalanine is converted to tyrosine by this enzyme, that is phenylalanine hydroxylase, and then this tyrosine, it gets converted to melanin. Melanin is a pigment present in skin, right? Melanin is a pigment present in skin. We studied in last class, right? In polygenic inheritance, skin color is determined by which pigment? Melanin pigment. And what we studied, the amount of melanin pigment is proportional to the number of dominant genes, right? ठीक है, यानी मेलानिन क्या है? मेलानिन इज अ पिगमेंट which determines skin color. मेलानिन इज अ पिगमेंट. ठीक है, चलो अब देखो.
phenylalanine is converted to tyrosine by this phenyl hydroxylase. Now this enzyme is absent. This enzyme, that is phenylalanine hydroxylase, is absent. So now this phenylalanine will not convert it and its concentration gets increased. This concentration, the concentration of phenylalanine gets increased and its byproduct is phenyl pyruvic acid. Its byproduct is phenyl pyruvic acid. So both these compound, phenylalanine and phenyl pyruvic acid, both these compound accumulate in blood. ठीक है, समझ में आया ना कि जो फिनाइल एलेनाइन है ये कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में, किससे? बाय फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्साइलेज. बट ये जो डिसीज़ है फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो ऑटोसोमल मेटाबॉलिक रेसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल मेटाबॉलिक रेसेसिव डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है कि ये एब्सेंट होता है. तो ये फिनाइल एलेनाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता और फिनाइल एलेनाइन अब कन्वर्ट नहीं हुआ तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है. फिनाइल एलेनाइन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा ब्लड में और इसी का बाय प्रोडक्ट है फिनाइल पायरुविक एसिड. फिनाइल एलेनाइन और फिनाइल पायरुविक एसिड, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, इस डिसऑर्डर को, इस डिसीज़ को कहते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया. समझ आ गया आपको इतना कि फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या है? ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है. इसमें क्या होता है? फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्साइलेज एब्सेंट होता है तो फिनाइल एलेनाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता और फिनाइल एलेनाइन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है ब्लड में. ये जो इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन है, इससे जो डिसऑर्डर है, इससे जो डिसीज़ होती है, दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया. ठीक है, अब ये चीज़ भी समझो कि जो टायरोसिन है ये गेट्स कन्वर्टेड टू मेलानिन. अब अगर ये फिनाइल एलेनाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, सोचो कि इस बीमारी में क्या होगा. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आएगी कि देखो, जब ये एब्सेंट है तो फिनाइल एलेनाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, राइट. अब टायरोसिन नहीं है, इसका मतलब इस डिसीज़ में टायरोसिन की भी तो कमी हो जाएगी ना. इस बीमारी में टायरोसिन की कमी हो जाएगी और जब टायरोसिन की कमी है तो मेलानिन की भी कमी हो जाएगी. जब टायरोसिन की कमी है तो मेलानिन की कभी कमी हो जाएगी. तो इस बीमारी वाले इंसान को क्या होगा उसे मेलानिन, यानी कि उसका जो स्किन कलर है वो रेड्यूस हो जाएगा. स्किन कलर उसका बहुत ही लाइट होगा. ठीक है, उसका स्किन कलर भी लाइट होगा क्योंकि मेलानिन पिगमेंट की कमी होगी उसमें. इस चीज़ को समझना है ना कि मेलानिन पिगमेंट की भी कमी होगी उसमें. समझ गए आप ये बात? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं. तो देखो, अभी ये दोनों ब्लड में प्रेजेंट होंगे और ये एक्सक्रीशन, ये दोनों के दोनों कंपाउंड यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएंगे. ठीक है, तो इसके लिए क्या करवाना होगा? यूरिन टेस्ट करवाएंगे और यूरिन में ये कंपाउंड नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते और इस डिजीज़ में इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है यूरिन में वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, समझ गए आप ये चीज़? दिस इज फिनाइल कीटोन्यूरिया. अब इसके सिम्टम्स देखते हैं. सिम्टम्स यानी लक्षण, जिसे ये डिसीज़ है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है. तो देखो, फिनाइल एलेनाइन का अमाउंट ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इससे क्या होगा? ये हमारी बॉडी के वाइटल प्रोसेस को इफेक्ट करेगा. इससे क्या होता है? इट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड कॉज सीवियर ब्रेन डैमेज एंड रिटार्डेशन. इससे क्या होता है? हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट अफेक्ट होता है. इट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड कॉज सीवियर ब्रेन डैमेज एंड रिटार्डेशन. ठीक है, ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाएंगे. रेड्यूस्ड मेलानिन फॉर्मेशन. क्यों होगा रेड्यूस्ड मेलानिन फॉर्मेशन? बिकॉज ऑफ रेड्यूस्ड टायरोसिन फॉर्मेशन. ठीक है, as decreased availability of tyrosine. टायरोसिन क्या है? टायरोसिन इज अ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन. ठीक है, टायरोसिन इज अ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेलानिन, यानी जब टायरोसिन प्रेजेंट होगा वो मेलानिन फॉर्म करेगा. अब जब टायरोसिन ही कम है, टायरोसिन का अमाउंट कम है तो मेलानिन का फॉर्मेशन भी नहीं होगा. ठीक है, तो रेड्यूस्ड मेलानिन फॉर्मेशन, सो reduced coloration of hair and skin.
may cause eczema of skin also, may cause eczema of skin also, skin rashes will be present, ठीक है, स्किन में रैशेज आ जाएंगे। अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है कि अगर किसी को ये है तो इसका ट्रीटमेंट हमें क्या करना होगा। ट्रीटमेंट में ये है कि रेस्ट्रिक्ट कर दो कि जिन फूड्स में फिनाइल एलेनाइन प्रेजेंट है वो फूड्स कंज्यूम नहीं करने हैं, ठीक है, जिन फूड्स में फिनाइल एलेनाइन प्रेजेंट है वही बॉडी में नहीं जाना चाहिए, उसी को खाना पीना स्टॉप कर दो, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है, फिनाइल कीटोन यूरिया। अब हम नेक्स्ट डिसऑर्डर है दैट इज सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, नेक्स्ट डिसऑर्डर इज सिकल सेल एनीमिया। देखो एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया यानी लेस अमाउंट ऑफ आरबीसीज, लेस अमाउंट ऑफ आरबीसीज, ठीक है, एनीमिया का मतलब होता है आरबीसीज के नंबर कम हो जाते हैं इसमें। और सिकल सेल एनीमिया इसका मतलब क्या होता है, जो आरबीसीज हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका नॉर्मल शेप इज बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड, the normal shape of RBCs is biconcave disc shaped। और सिकल सेल एनीमिया में जो नॉर्मल बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड RBCs हैं उनका जो शेप है वो सिकल शेप के हो जाते हैं। सिकल शेप कैसा है, दिस इज सिकल शेप, ठीक है, हाफ मून, दिस इज सिकल शेप, हाफ मून भी नहीं है ये सिकल शेप ये है, ठीक है, ये है हाफ मून नहीं है, क्रिसेंट शेप कह सकते हैं, ठीक है, सिकल शेप्ड आरबीसी। समझ आ रहा है आपको कि आरबीसीज का शेप ऐसा हो जाता है, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में द जीन कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है दैट इज़ नॉट नॉर्मल, ये जो जीन है क्या करता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है। इससे क्या होता है, इट ऑल्सो चेंजेस द शेप ऑफ आरबीसी। नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी इज बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड, normal shape of RBCs is biconcave disc shaped. In sickle cell anemia the RBCs become sickle shaped. In sickle cell anemia the shape of RBCs become sickle shaped. और जब सिक्कल शेप्ड के हो जाएंगे तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी गेट्स रेड्यूस्ड, ठीक है। सिक्कल शेप होने की वजह से सिक्कल शेप की वजह से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। सिक्कल शेप की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, सिक्कल शेप की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। दिस लीड्स टू एनीमिया। दिस इन टर्न में लीड टू हार्ट फेलियर एंड किडनी फेलियर। अब ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा, हार्ट को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, राइट। अब हार्ट में ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर, ठीक है। देखो इसमें ना ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो जीन्स हैं वो जीन क्या है, तो देखो नॉर्मल जीन जो है दैट इज एच बी यानी हीमोग्लोबिन, ठीक है। एच बी ए इज नॉर्मल एंड एच बी एस इज म्यूटेंट जीन, ठीक है। एच बी एस इज म्यूटेंट जीन एंड एच बी ए इज नॉर्मल, ठीक है। अब ये देखो नॉर्मल होमोजाइगस इंडिविजुअल, नॉर्मल होमोजाइगस मतलब ये किसका है, एच बी ए and HbA that is normal homozygous individual, so normal RBCs, ठीक है। और सेकेंड वाला जो है that is heterozygous individual means HbA and HbS, HbA and HbS that is RBCs of heterozygous individual that is sickle cell carrier, ठीक है, हैज नॉर्मल एज वेल एज सिक्कल शेप्ड आरबीसीज। नॉर्मल एचबी, देखो इसमें एचबीए है मतलब नॉर्मल भी है और एचबीएस म्यूटेंट जीन भी प्रेजेंट है, इसीलिए नॉर्मल भी है, नॉर्मल आरबीसीज भी है और सिक्कल शेप्ड आरबीसीज भी है, नॉर्मल आरबीसीज भी है और सिक्कल शेप्ड आरबीसीज है। इसमें क्या है, 50% प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ म्यूटेंट जीन टू प्रोजेनी, ठीक है। देन थर्ड इज सिकल सेल एनीमिया दैट इज HbS एंड HbS, ठीक है। दे सफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। अभी सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें होता क्या है, तो देखो जो हमारी नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन है, ठीक है, उसमें 6th पोजीशन पर जो है दैट इज
ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। देखो इसमें दिस डिसीज इज कॉज्ड बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन, ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन इन 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, उसमें बीटा चेन होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल उसमें बीटा चेन होती है, जिसमें 6th पोजीशन, जिसमें 7 पोजीशंस होती हैं। फर्स्ट पोजीशन पर वेलिन, सेकेंड पोजीशन, ये 3rd पोजीशन, 4th पोजीशन, 5th पोजीशन, 6th पोजीशन। तो 6th पोजीशन पर है ग्लूटामिन, 6th पोजीशन है 6th पोजीशन में है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड गेट्स सब्स्टिट्यूटेड बाय वेलिन, ग्लूटामिक एसिड एट 6th पोजीशन, इट गेट्स सब्स्टिट्यूटेड बाय वेलिन, ठीक है। इससे इस डिसीज में क्या हो जाता है, दिस इज HBS, यानी इसमें क्या होता है, द ग्लूटामिक एसिड एट 6th पोजीशन गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय वेलिन इन बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी इससे क्या होता है कि जो आरबीसीज का शेप है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। समझ गए आपकी 6th पोजीशन पर देखो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, उसमें 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड है, 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड है, लेकिन वो वेलिन से चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, जब ये चेंज हो गया, इट इज म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, इसमें क्या हो गया कि जो नॉर्मल बाइकॉन्केव डिस्क शेप्ड है वो सिकल शेप्ड का बन जाता है, वो सिकल शेप्ड का बन जाता है। और इससे क्या होता है कि जो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, जो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो और इससे क्या होता है, इट लीड्स टू सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। समझ गए आप सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि in the beta chain of hemoglobin molecule the glutamic acid gets substituted by valine in 6th position, or now this mutant hemoglobin molecule, it leads to change in shape of RBCs. The shape of RBC gets changed from biconcave disc shaped to elongated sickle shaped RBCs, ठीक है। normal shape of RBCs is biconcave disc shaped, they get changed to elongated sickle shaped RBCs. now this shape change, इससे क्या होता है कि it loses the ability to carry oxygen carrying capacity of RBCs is reduced. अब ऑक्सीजन कम जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर, ऑक्सीजन की, क्योंकि हमारी बॉडी के सभी सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, है ना। आरबीसीज कैरी ऑक्सीजन, ठीक है। चलो नाउ थर्ड डिसीज है, दैट इज स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड, ठीक है। देखो स्टार्च सिंथेसिस एंड शेप ऑफ सीड, ये दोनों फीचर्स, ठीक है। प्लियोट्रोपी में क्या है, वन जीन अफेक्ट सेवरल phenotypic trait, one gene affects several phenotypic traits, that is one gene, it will carry both starch synthesis as well as shape of seed, ठीक है। तो नॉर्मल जो डोमिनेंट जो है दैट इज बीबी, कैपिटल बीबी, इट विल प्रोड्यूस कैपिटल बीबी जो है, तो उससे क्या होगा, गुड अमाउंट ऑफ स्टार्च, ठीक है। स्टार्च भी अच्छा खासा अमाउंट में, और सीड्स विल बी राउंड, ठीक है। एंड रेसेसिव होमोजाइगस दैट विल बी स्मॉल बी, उससे क्या होगा, लेस स्टार्च भी कम और सीड्स भी रिंकल्ड, ठीक है। तो रेसेसिव का फीचर क्या हो जाएगा, लेस स्टार्च एंड रिंकल सीड, और डोमिनेंट कैपिटल बी, उससे क्या हो जाएगा, गुड अमाउंट ऑफ स्टार्च एंड सीड्स विल बी राउंड, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम प्लियोट्रोपी खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम ये पेडिग्री एनालिसिस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो गुड बाय, टेक केयर।